Okay, good evening everyone. So today we are going to start a new topic from your first class of your class 12. Since as we know that in NCRT book, so or your any ISC book also, your first chapter is relation and function. Since we know very well the relation is function chapter is in your class 11 also. Clear? So it is much related with the class 11. So but I'm starting with the third chapter, that is matrices, which is totally new for especially for the CBSE student. For ISC they have already done in the class 10 as well. The introductory chapters of the matrices are already there in class 10, but for CBSE student it is totally new and it is one of the scoring topic in class 12. So the matrix and determinant, two chapter comprises of 10 marks in here, and it is very scoring as well, and it is very easy chapter, but the question will be conceptual one, because nowadays since we know very well in board exam the question maximum comes from what conceptual basis question, conceptual basis, that is a competency based question. So from this chapter, although the chapter is very easy, but remember that the tricky question will comes from here, the internal question, that is a definition the based on the concept, that is very very important. Clear? So one by one we'll start with the basic introduction of the matrices. So here is the first, what do you mean by matrices? Look over it. So matrices means actually whenever your number or any elements, anyway, not only number, also alphabet or anything, if you arrange in row and the column, it is if it is properly arranged in a row and the column, and if it is written inside the square bracket, so that is actually the matrices. Clear? So that means here, so matrix is what actually it is a order rectangular array, means it is a box. Suppose box of not only number, it can be any functions or element or any alphabet as well. For example, look over it. Suppose if I write within the square bracket, it is denoted within the square bracket. Remember, clear? Suppose if I write 2 over here, 3, 4, here 5. So this is what matrix. That means whenever any element, any number is arranged in what certain row as well as column. So that is called a matrix. Not only this, suppose if you write in this way also, suppose here is A, here is B, here is C, this is also one matrix. So if we write here is A, here is 1, here is 2, here is suppose sign X, here is 3, here is 4, this is also a matrix. So matrix is this one. So whenever any number of the element is what written inside the what rectangular box, but it should be arranged in properly row and the order, it should not be written in the haphazard way. So this is a matrix, and it is not only denoted by this bracket, sometime it is in some book it is denoted by what common bracket as well. But example 1 2, suppose 3 4 5 and 6, so this is the matrix. Clear? So it has a wide application. Remember that maximum in your class 12 the application of the matrices will find in the third part of this lesson. So that is when to solve, that is a the elimination method, or that type of the system of where solving the system of linear equation, we can use matrices. And many coding and coding of your computer also are actually arranged in what matrices, matrix form. Clear? So look over. Now first you have to know about the order. Clear? So order of the matrix. So order of the matrix means that is a number of row and the column is called the order of the matrix. Remember that this is a row, this is a row. Clear? As we know very well, in dex is arranged in a row, whereas in assembly is what in a column way, assembly. So whenever this is a row, this is a dex, so that means this is a row, whereas this is a column, this is a column. So if you see here, how many rows are there? Two rows are there. Clear? And how many columns are there? Two columns are there. So that means the order is written into this format. So 2 into 2. Remember that the first is a row and the second is a column. First you have to write down the row while writing the order. Clear? So order means having m row and n columns. So that is the row. Clear? Next. Next part here, if we see how many rows are there, 1 2 3 rows are there. So 3. So how many columns are there? 1. So this is a 3 into 1 matrix. Clear? So this is how you have to represent the order. So here how many rows are there? 3 rows are there. And how many columns are there? 2 columns are there. So 3 into 2. Similarly here also 3 into 2. So this is a what order of the matrix. So order of the matrix is, suppose A it is written into m into n, where m denotes the number of row. Clear? Where n denotes, the second always denotes the number of column. Any doubt?
Clear? And denote the yeah. So next, the element is denoted by the aij format. Clear? So element is denoted by aij format. Now the very interesting part is that, so aij format. So here also same thing. So if we write aij, the I denotes the what? Row, and j denotes the column. Any doubt? Element is denoted by this one. For example, look over. If we see this one, so this is a sin x, this is your sin x. Clear? So which row? Which row this one? Second row. Clear? Second row. And which column? Second column. So this element is a position of A22. Any doubt? So this is how you represent the element. So element is always denoted by the small letter, remember that, whereas the matrix is always denoted by the capital letter. If you denote this matrix, you have to represent by capital letter, either with letter A or with B, C, D, whatever. But remember that matrix is always denoted by the capital letter, whereas the element inside is always denoted by the small letter. For example, if you want to write down the element here, so this is which position? First you have to check which row is this. Third row. तो कौन सा कॉलम है आप देखिए? फर्स्ट कॉलम. सो आपका होगा A31. Am I clear? And now the very important part is that how many elements are there in a matrix? So that is actually the order value. Look over, how many elements are there? 1, 2, 3, 4. 2 into 2 is 4. How many elements are there? 1, 2, 3. So 3 into 1 is 3. So how many elements are there? 3 into 2, 6 elements are there. This is very important. अभी हम लोग को चाहिए. So that means the number of element in a matrix is actually the order value. ऑर्डर वैल्यू मतलब ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा आपका? 2 into 3, 3 into 4 ऐसे लिखा जाएगा. पर एलिमेंट कितना है बोलने से? That is your, how many elements are there? 4 elements are there. How many elements? 3 elements. How many elements are there? 3 into 2, 6 elements are there. This is how you have to find out the number of element. Up to here, any doubt? क्लियर? एकदम बेसिक से सब लोग को इजी लगेगा. अभी आस्ते आस्ते करके स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे. दिस इज द फर्स्ट क्लास, सो एकदम डीपली पढ़ना है ये चैप्टर को. क्लियर? चलो नेक्स्ट. So now about the types of the matrix. A very important, every year one MCQ question comes from this 3 slide back to back. 3 slide अभी शो कर रहे, उसका इंटरनल पार्ट से आपका एक क्वेश्चन आएगा एवरी ईयर एमसीक्यू में, याद करना. क्लियर? तो 3 स्लाइड को एक बार एक ध्यान दे के सुनना है आप लोगों को, और जो लास्ट में एक तो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बोल के रखा है वो आपको आंसर देना है. क्लियर? इंटरैक्ट करना है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द रो मैट्रिक्स. दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो. जिसके पास कितना खाली रो होगा? एक रो खाली होगा. दैट मीन्स एग्जाम्पल, रो एक ही होगा, कॉलम जितना भी हो सकता है, जैसा 1 2 3. हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 रोज आर देयर. हाउ मेनी कॉलम? कॉलम जितना भी है, फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स अ मैट्रिक्स शुड बी इनटू दिस फॉर्मेट, 1 इनटू समथिंग. तो ये हुआ आपका रो मैट्रिक्स, जिसका फर्स्ट रो बोलेंगे एवरी टाइम. फर्स्ट का लेटर जो है वो किससे डिनोट किया जाएगा? रो. सेकेंड का कॉलम. सो ये हुआ रो, कॉलम कुछ भी हो सकता है. इज देयर एनी डाउट? क्लियर? चलो. कॉलम मैट्रिक्स मींस दैट मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम. विच हैज ओनली हाउ मेनी कॉलम? वन कॉलम. दैट मींस आपका ऐसा होना चाहिए. रो जितना भी हो सकेगा, 1 2. सपोज ये खाली लिखा, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स. चेक इट. सो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? इसका ऑर्डर बोलिए तो 2 into 1. रो जितना भी हो सकता है, पर कॉलम क्या है? 1 है. एनी डाउट? क्लियर? तो 1 into n फॉर्मेट. अगर इसका बोला जाए, सपोज लेट्स वी कंसीडर बी लेटर, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? n into 1 का फॉर्मेट. दैट मीन्स ये जो है ये आपका 1 होगा, इसमें रो 1 होगा. ये हुआ आपका रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स. ये दोनों मैट्रिक्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना. क्लियर? बट आफ्टर दैट अब जो जो आ रहा है इसके बाद, यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? चलो. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स रेक्टेंगल. नाम ही तो रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल मतलब जब नंबर ऑफ रो एंड द कॉलम क्या नहीं होगा? सेम नहीं होगा. दैट मीन्स व्हेन m and n आर नॉट सेम. सपोज अगर a आपका लिखेंगे m into n, m into n, when m is not equals to n, that means नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम नहीं होगा, तब क्या बोलेंगे हम लोग? रो सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. एग्जांपल 1 2 3 1 6 minus 2. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रो एंड कॉलम सेम नहीं है. रो कितना है? 2 है, कॉलम 3. सो इसका ऑर्डर होगा 2 into 3. एनी डाउट? क्लियर? नाउ सेम लॉजिक, स्क्वायर. द नेम इटसेल्फ इज अ स्क्वायर. यहाँ से स्टार्ट होगा. अब एकदम ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर दैट वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा. टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर? सो फर्स्ट
यहाँ से सुनना ही, आफ्टर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको एकदम ध्यान देना है। 5 टाइप का मैट्रिक्स है, उसी से क्वेश्चन आएगा इंटरनल। क्लियर? तो सुनिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट वेयर द नंबर ऑफ रो एंड द कॉलम्स आर सेम। दैट मीन्स फॉर्मेट कैसा होगा आपका, m इंटू एम का फॉर्मेट होगा। अगर a m इंटू एन है तो कंडीशन क्या होगा आपका, m और n बराबर होगा। दैट मीन्स रो एंड कॉलम सेम, जैसा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 ऐसा होगा। आप लोग का सिलेबस में मैक्सिमम आएगा 3 इंटू 3 तक ही। क्लियर? चलो एग्जाम्पल दे देते हैं एक तो, 1 माइनस 3 2 और 1। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रो एंड द कॉलम्स आर सेम। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कुछ भी अगर डाउट है पूछना। अब सुनना ही, नाउ अ डायगोनल मैट्रिक्स, लिसन केयरफुली। Diagonal matrix means that square matrix is said to be diagonal where all non-diagonal elements are zero। अब diagonal बोलने से तो स्क्वायर में दो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा स्क्वायर बनाया है कि नहीं, तो डायगोनल तो हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं, ये भी पर मैट्रिक्स में हम लोग ये खाली डायगोनल को कंसिडर करते हैं। फ्रॉम राइट हैंड साइड टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सॉरी। क्लियर? सो इसी को खाली डायगोनल बोलता है, इसको डायगोनल नहीं बोलता, याद करना। एनी डाउट? और एक दो चीज ध्यान लगा के सुनो। अच्छा सुनो, यहाँ पर 1 मिनट के लिए देखना सब लोग। अगर ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हुआ तो मैट्रिक्स कैसा फॉर्मेट में होगा, सब लोग ध्यान देना। क्लियर? एवरी वन लिसन केयरफुली। A11 दिस वन, A12 A13, yes or no? What is the next element? A21 second row first column, A22 A33। ये चैप्टर A23 सॉरी, ये चैप्टर में आपको ज्यादा छोटा छोटा चीज को लेके चलना है। 31 A32 और A33। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, आप लोग अगर देखेंगे डायगोनल एलिमेंट में कुछ चीज कॉमन मिला आपको, क्या मिला बोलो तो? ये कंसेप्ट मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। इफ यू सी दिस डायगोनल एलिमेंट डियर, अ डायगोनल एलिमेंट कंटेनिंग आई एंड जे आर सेम। देखिए तो आई एंड जे क्या आपका सेम है, यस और नो? आई और जे क्या है, सेम है। चेक इट, 1 1 2 2 3 3 है। सो रिमेंबर दैट डायगोनल एलिमेंट में आई एंड जे सेम होता है, ये आप लोग लिख के रखना डायगोनल एलिमेंट में। सो डायगोनल एलिमेंट में आपका आई इज इक्वल्स टू जे। अब समझ में, डायगोनल एलिमेंट मतलब ए आई जे जो होता है, एलिमेंट ऐसे डिनोट किया जाएगा, हम बोला था। तो आई एंड जे आर सेम। So what is a diagonal matrix? A diagonal matrix is that square matrix whose all non-diagonal elements are zero। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब ये छोड़ के ये सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो। ये भी कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, पर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। दैट मीन्स अगर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जी है, यही सब ध्यान देना है। आपका एमसीक्यू यहाँ से आएगा, ये जो हम लिखा रहे हैं यहाँ से आएगा, याद करना, ये वाला कॉन्सेप्ट से आएगा एमसीक्यू। क्लियर? सो नॉन डायगोनल मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू जे। इफ यू नोटिस हियर आई एंड जे सेम है, 1 2 1 3 डिफरेंट डिफरेंट है, देखो। सो डायगोनल एलिमेंट में आई एंड जे सेम होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट में आई एंड जे सेम नहीं होगा। क्लियर? चलो सुनो, दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें स्क्वायर होना पड़ेगा, इसलिए एम इक्वल टू एम लिखा है, सेम होना चाहिए। और ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। सो एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा -3, यहाँ पर लिख दिया 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या होना चाहिए, 0। एक काम कर देते हैं, चलो प्रियंती, एनी डाउट? ये देखो, अगर आप लोग सोच रहे सर यहाँ पर भी तो 0 है, इसका कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 लगाएंगे, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सो दैट मीन्स इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट में देर इज नो कंडीशंस ओवर देयर, इट कैन बी 0, इट कैन बी एनी नंबर, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। अगर डेफिनेशन पढ़ा होगा, a square matrix is said to be diagonal matrix when non-diagonal element are what, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चाहिए देखना, जितना इजी लगता है ना आप लोग का एनसीईआरटी में, उतना नहीं, क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है हम लोग को बोर्ड में। ये आपका क्लास 11 नहीं है, पहले दिमाग से हटा देना। यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं ना, एक चैप्टर से अगर छोटा बहुत क्वेश्चन होगा, आप लोग इसका लेंदी है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर 1 मार्क्स के लिए अगर 3 मिनट कोई क्वेश्चन लगे, वी हैव टू डू। क्लियर? क्लास 12 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एवरेज टाइमिंग मैच होगा।
क्लियर? तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है. चलो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. नाउ लिसन केयरफुली. क्लियर? सुनते जाना है क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम इसी से. क्लियर? तो स्केलर मैट्रिक्स इज दैट डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal values are all diagonal element are all same. that means जो ये एलिमेंट था ये सारा का सारा क्या होना पड़ेगा? सेम होगा. क्लियर? चलो, एम आई क्लियर? तो कोई भी लास्ट तक क्लास नहीं छोड़ेगा क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है यहाँ अभी जो पढ़ा रहे उसी का कॉन्सेप्ट से लास्ट में 18, 19, 2025 और 4 में पूछा गया क्वेश्चन है. क्लियर? तो सुनना. तो स्केलर मैट्रिक्स मींस दैट डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal element are same. Yes, Rinzing, any doubt? It is just a randomly A33 is should be written into this format. A3 into 3 छ भने यसरी लेख्न सक्छ in this way because this is the A11 first element के हुन्छ? Yeah, this is, yeah, this is not related to this one. This I am just representing A3 into 3. Suppose this is the A into 3 into 3. So that element should be this format A11, A12, A13. Yes, sir? Yeah. This is the first row, first column. A11 हुन्छ नि त. First row, second column. First row, second, third column. Any doubt? I'm here. I'm just why making a concept clear that the diagonal element ing are same and non-diagonal element ing are not same. To understand this concept, यो बुझ्नुको लागि मैले यो लेखेको. ये समझने के लिए आई नॉट इक्वल्स टू जे मतलब क्या है? आई नॉट इक्वल्स टू जे मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट बिकॉज इन एमसीक्यू दिस विल कम. डायगोनल मैट्रिक्स विच कंडीशन? 3-4 कंडीशन देगा, उसमें से एक कंडीशन ये होगा. तो नेक्स्ट सुनिएगा. अब स्केलर मैट्रिक्स दैट डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स बोलने से ये क्या होगा आपका? 0. पर ये जो डायगोनल का एलिमेंट होगा सारा सेम होगा. ऑल क्या होगा? सेम होगा. कुछ भी वैल्यू पर सेम होगा. Suppose if I write here 5, here if I write 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5. This is called a scalar matrix. Am I clear? So अगर आप लोग यहाँ देखा होगा INJ सेम होने से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू रहेगा k. जैसा एग्जांपल यहाँ पर क्या है? 5 दिया है. So it is not necessary that 5. It can be 6. इसलिए k मतलब कांस्टेंट में. अगर INJ not equals to j, what does it implies? It implies that non-diagonal element 0 होगा. Why it is so? Because scalar is also kind of the diagonal matrix. सुने, अभी एक तो क्वेश्चन आएगा. एनी डाउट? मेन चीज आपको याद करने का चीज पता है ये है, ये चीज. चलो कैन वी डू नेक्स्ट? किसी को भी अगर डाउट है तो पूछना. क्लियर? चलो नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Now that scalar matrix is said to be identity when the diagonal elements are 1. मतलब आगे तक क्या था? diagonal element सब सेम होना चाहिए था. अभी वो जो सेम है वो वैल्यू मस्ट बी 1. दैट मीन्स एग्जाम्पल यहाँ देखा, INJ सेम मतलब डायगोनल एलिमेंट में 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल में 0. एग्जाम्पल है 1 0 0 1. ये भी एक क्या है? स्केलर भी है पर ये 1 होना चाहिए. और एक एग्जाम्पल 1 1 1, ये 0 0 0 0. This is called a identity matrix. So it is denoted by letter I. So if we write I2 means it is a identity matrix of order 2 into 2. If represented by I3, it implies that sometime it is written I3 और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखेगा 3 into 3. बात एक ही है. 3 मतलब क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी इज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अगर रो 3 होगा तो कॉलम भी अपने आप हिडन है, 3 होगा. एम आई क्लियर? सो दिस इज अ 3 into 3. तो कंडीशन क्या है? स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए. आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा. सो दैट मीन्स व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, ये क्वेश्चन आया गया है, ये सभी याद करना आपको. ये सिंपल है, इतना रट्टा नहीं मानना. सिंपल है. डायगोनल एलिमेंट में आई एन जे सेम होता है. सो आई व्हेन आई इक्वल्स टू जे एलिमेंट का वैल्यू 1 होगा. व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे नॉन डायगोनल 0 होगा. इज देयर एनी डाउट? एक चीज थोड़ा माइंड में सेटअप करना, वो हम लास्ट थर्ड क्लास सेकेंड क्लास में सीखेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क लाइक अ 1. 1 का मतलब पता है? 1 कैसा होता है? नॉर्मल नंबर में किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा सेम देगा. जैसा अगर 1 into 6 6. सो आइडेंटिटी वर्क लाइक अ 1. सो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा
लाइक ए इंटू आई, इट विल गिव यू ए। सो इतना दिमाग में सेटअप करना, बाद में हम लोग आएंगे। क्लियर? चलो, ये वो आपका आइडेंटिटी। यहाँ तक क्लियर? चलो सुनिएगा। नाउ नॉल मैट्रिक्स। अ नॉल मैट्रिक्स, यहाँ तक था एक पैटर्न। नॉल मैट्रिक्स मीन्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। वेयर आई एन जे जो भी है, इट शुड नॉट बी स्क्वायर। स्क्वायर ही होना पड़ेगा ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, इसलिए याद करना। अगर हम 0 0 0 0 लिखा, ये भी एक नॉन मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा जिसमें सब जीरो है, तब भी वो मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? आपका नॉन मैट्रिक्स। कुछ डाउट? एनी डाउट अप टू हियर? क्या एनी डाउट? ओके कृष्णा, एनी डाउट अप टू हियर? सो दैट मीन आई एन जे कुछ भी होगा जीरो। चलो एक चीज पकड़ते हैं। क्लियर? यहां तक हो गया। चलो दो और करने के बाद एक बार फिर से हम लोग रिकल करते हैं क्विकली। अब ये सब चीज मैक्सिमम कितना टीचर स्किप करता है, पर ये आपका एनसीईआरटी बुक में है। क्लियर? वेयर यहाँ से कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में नहीं, पर एनसीईआरटी का बुक का अंदर में इंटेक्स क्वेश्चन है यहाँ पर। नाउ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ लोअर ट्रायंगुलर, नाम ही तो ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट का अपर पार्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। तो ध्यान लगा के सुनना। सो दैट मीन्स डायगोनल पहले लिखते हैं 1 3 6, कुछ भी लिखा। यहाँ लिख दिया हम -3 2 1। ये ट्रायंगल बना कि नहीं? एक जस्ट दिखा रहे हैं आपको। ट्रायंगल बना, देखो तो। इसीलिए इसको बोलता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि लोअर में ट्रायंगुलर बना है। लोअर ट्रायंगल, ट्रायंगल बना कि नहीं ऐसा? तो इसका अबोव का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका जीरो होगा। क्लियर? यहाँ देखना। सो अबोव ये वाला जो पार्ट है, इसको व्हाइट से लिखते हैं, ये वाला पार्ट है जीरो का। आपको हम अभी क्या बोला था? कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन। नाउ रिंजिंग, अगर आप लोग सोच रहा होगा तो थोड़ा सुनिएगा। ये वाला, ये जितना दिख रहा है ये वाला ऑब्जर्वेशन, ये जिसको ऑब्जर्वेशन करना आ गया, इसी से आपका कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। सुनिएगा। डायगोनल जो था, डायगोनल में आई एन जे सेम था। ठीक है? डायगोनल का अपर में अगर देखेगा, क्योंकि एलिमेंट डिनोट होगा ए आई जे से, अगर अबव में एलिमेंट दिखा जाएगा, देखना आई छोटा है जे से। देखो तो आई इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? जे। वेयर अगर लोअर में देखा जाए डायगोनल का नीचे में, आई इज ग्रेटर देन जे। एम आई क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोग को? थोड़ा आप लोग को ऐसे करके सर्कल बनाता है हम। ये पोर्शन में आपका आई आपका लेस देन जे है, और जो ये पोर्शन है आपका, इसमें देखेगा तो आई इज ग्रेटर देन जे है। यस और नो? क्लियर? चलो, लो ट्रायंगुलर में क्या बोल रहा था? ये वाला पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स कंडीशन क्या होना चाहिए? आई लेस देन जे जब होगा तो ये जीरो होगा। पर साथ साथ में m इक्वल टू एन क्या दिया है सर? अगर बोलने से ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलने का कोशिश कर रहा है। m और n तो ऑर्डर का बात है, m इंटू एन। सो पहले तो क्या होना चाहिए? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, दोनों में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल का अबव में जीरो होना चाहिए। अगर सोचा सर अबव में जीरो है, क्यों लोअर नाम दिया भाई? क्योंकि लोअर में ट्रायंगल बन रहा है। अब दूसरा एग्जांपल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका ऐसा। चलो यहाँ पर लिखते हैं 3 2 6, यहाँ पर लिखते हैं 5 1 -3, कुछ भी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, अपर में ट्रायंगल बनेगा, ऊपर साइड में ट्रायंगल बनेगा। कुछ डाउट? सो दैट मीन्स कंडीशन क्या होगा? नीचे में क्या था आपका? आई इज बिगर देन जे, सो इसलिए आई ग्रेटर देन जे। ये चीज आपको ध्यान देना है। हम बोला तो डेफिनेशन से ज्यादा ये चीज ध्यान देना है। एनी डाउट अप हियर? चलो यहाँ तक क्लियर? वन बाय वन। हाँ, अब थोड़ा बहुत आपको लिए कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ध्यान लागे। एक बार पहले कान खोल के 2 मिनट का लेक्चर सुनिएगा। फर्स्ट इज दैट, सबसे इजी जो उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, रो मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो ओनली, column matrix containing one column only, rectangular when number of row and the number of column are not same, rectangular, square when the row and the column are same, मतलब रो जितना होगा कॉलम जितना, 2 इंटू 2 3 इंटू स्क्वायर। यहाँ तो हो गया। स्क्वायर के बाद जो आएगा वहाँ एकदम ध्यान देना है। ठीक है? स्क्वायर के बाद आप लोग क्या बोला? डायगोनल पढ़ा। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है।
अब स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था आपका, वो डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर बोला जाएगा जो स्केलर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारा क्या होगा, सेम होगा, 5 5 5 कुछ भी होगा, ठीक है। चलो, और आइडेंटिटी मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है जिसका जो डायगोनल का एलिमेंट सेम था वो वैल्यू 1 होना चाहिए, वो हुआ आइडेंटिटी। और एक चीज एकदम माइंड में सेटअप करना है कि डायगोनल एलिमेंट मतलब आई एन जे सेम होना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब आई एन जे नॉट इक्वल्स टू होना। अपर में आई छोटा होता है लेस देन 3, और डायगोनल का नीचे में आई क्या होता है आपका, बड़ा होता है। क्लियर। अब लोअर ट्रायंगुलर मतलब जिसमें अपर में जीरो हो जाए, दैट मीन्स ए आई जे इज जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। वेयर लोअर अपर ट्रायंगुलर में क्या था, नीचे में जीरो होगा, नीचे का जीरो होगा, डायगोनल का डाउन में जीरो होगा। तो ये सब चीज। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर सुनो, ये क्वेश्चन आपका एजसन एंड रीजनिंग में 2024 में आया था। स्क्वायर मैट्रिक्स, लिसन केयरफुली, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद क्या पढ़ा हम, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन मैट्रिक्स रिवाइज करना भूल गया, नॉन मैट्रिक्स सब जीरो, ठीक है। और आपका था यहाँ पर आइडेंटिटी, याद करना। ये जो डाउन है ये मे नॉट बी ट्रू, मतलब इट इज, यू कैनॉट से दैट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल, क्योंकि सब डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या नहीं है, डायगोनल नहीं है। पर सब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है। एम आई क्लियर? क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल बोला जाएगा जब कंडीशन क्या होगा, जब इसका ये होने का कंडीशन क्या है, जब ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। और डायगोनल स्क्वायर स्केलर होने का कंडीशन क्या था, जब आई एन जे सेम होगा, आई एन जे सेम होगा तो ये इसका पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, मतलब डायगोनल में पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। स्केलर मैट्रिक्स कब आइडेंटिटी होता था, जब आई एन जे में जो कांस्टेंट टर्म वैल्यू था ना वो के नहीं होगा, वन ही होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन, तो याद करना, डाउनवर्ड मे नॉट बी ट्रू, मतलब आप नहीं बोल सकते कि इज ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर, नो, यू कैनॉट से दैट, बट द रिवर्स इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। याद करना, दैट मीन्स यू कैन से दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स 100%, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, डायगोनल का डेफिनेशन ये था। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, यस इट इज स्केलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स यहाँ से अब आप कुछ भी ऊपर जाओगे सब ट्रू है, दैट मीन्स ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल ऑल्सो, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर ऑल्सो, all diagonal matrices are square also, but you cannot say that all diagonal matrices are scalar. The reason behind giving this statement is that it may come in adjacent in reasoning question, और 2024 में एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आया था। Am I clear up to here? यहाँ तक क्लियर? चलो, ये डिफरेंस क्लियर। चलो, अब हुआ इक्वलिटी में, अब दो चीजें, उसके बाद तो हम लोग समझ जाएंगे। मेन एक कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? चलो सुनो, अब है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स मींस अ टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, दैट मींस आप अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए, आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पर 2 3 A B हुआ फॉर एग्जांपल, ये बराबर यहाँ पर सपोज C लिखा, यहाँ पर D लिखा, यहाँ पर 2 और 3 लिखा, ये मैट्रिक्स बराबर हो सकता है। रीजन इज दैट ये क्या है, ऑर्डर कितना है, पहले ऑर्डर चेक करना है आपको, 2 × 2, ये भी 2 × 2, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम फर्स्ट, देयरफॉर ऑर्डर इज सेम, फर्स्ट क्राइटेरिया देखो, इफ देयर ऑर्डर आर सेम। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब दैट मीन्स यहाँ से आपको अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकेंगे, सी का वैल्यू 2 है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा, डी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 2 है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अब बी का वैल्यू 3 है। एम आई क्लियर? सो दिस इज हाउ, सो टू मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है, क्लियर, ये शायद हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इजी है, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंसेप्ट में ध्यान देंगे, क्योंकि आज का क्लास देखो फर्स्ट क्लास है, आउट ऑफ आज का क्लास से आपको याद के रखना एटलीस्ट 1 मार्क्स तो 100% श्योर है कंसेप्ट के लिए,
1 मार्क्स 100% श्योर है, मिनिमम बोल रहा है हम। चलो ये भी अभी नहीं चाहिए। अच्छा ये एक ठोकर इसको कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन भी चलो समझा, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा, सिंपल है। ए प्लस बी तभी ऐड होगा जब इसका, अगर ये m इंटू एन का ऑर्डर होगा, ये भी m इंटू एन होगा, देन ओनली यू कैन ऐड, देन योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स मस्ट बी m इंटू एन। क्लियर? सो दैट मीन्स रिमेंबर दैट दो मैट्रिक्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कब हो सकेगा, जब आपका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, इज वेरी इजी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एकदम इजी है ये सब चीज, तो जैसा ये हुआ, ठीक है, 2156 लिखते, कैसे ऐड होगा, ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएगा। चलो ऐड करने से ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 2 कितना हुआ 4, ऐसा ही 1 + 1 2, एकदम ही 3 + 5 8, 6 + 2 8, ये है आपका एडिशन। सब्ट्रैक्शन होने से माइनस होता है, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 5 -2, 2 - 6, ऐसे होता है एडिशन। क्लियर? दूसरा चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर। आई होप जो आपका साइंस का स्टूडेंट है उसको तो स्केलर मतलब आप लोग को पता है, स्केलर मतलब कांस्टेंट होता है। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज मल्टीप्लाई विद द ऑल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल if a is dear 2 1 3 and 4, and if you want to find out the 3a, that means you are multiplying with 3, so you have to multiply with all the elements, 3 2s are 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, so this is the scalar multiplication। I'm not talking about the multiplication, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट क्लास से बेसिक इंट्रोडक्शन से जा रहे क्लास, जो 1 मार्क्स के लिए खाली आज का क्लास। क्लियर? और कंसेप्ट पूरा सिखा दे रहे डेफिनेशन में। चलो आपको यही बोला था, आइडेंटिफाई करना है, सब लोग इंटरैक्ट करो कि कौन कौन टाइप का मैट्रिक्स है, डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर स्क्वायर में भी तो वेराइटीज क्या है, स्क्वायर के बाद डायगोनल क्या, डायगोनल के बाद क्या क्या हम लोग, डायगोनल के बाद क्या क्या हम लोग, स्केलर क्या, स्केलर के बाद आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी के बाद फिर अपर ट्रायंगुलर, ऐसा था ना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो एक एक का नाम देना है आप लोग को। चलो ये कौन सा मैट्रिक्स है, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और सबका ऑर्डर भी बोलना है। इसमें कुछ है ऐसा डायगोनल साइगोनल कुछ भी नहीं, ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? आप लोग थोड़ा इंटरैक्ट कीजिएगा, मुझे भी इजी रहेगा, ये 1 2 3 ऐसे करके जाते। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी, क्योंकि और जितना भी वेराइटीज है सब स्क्वायर में था, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलो व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, नॉल मैट्रिक्स, नॉल और द जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? सो इट इज स्क्वायर ऑल्सो, वो नहीं बोलना है, मतलब परफेक्ट जो है वो बोलना है। तो ये एक्चुअली स्क्वायर तो है, 100% स्क्वायर भी है, पर ये एक तो नॉन में। ऑर्डर तो समझ में आ गया, 3 × 3, इसका अगर ऑर्डर बोलोगे 2 ठो रो 3 कॉलम, सो ऑर्डर भी लिख दे रहा है। चलो 2 × 3 ऑर्डर, इसका 2 × 2, इसका 3 × 3। क्लियर? इसको डिनोट किया जाएगा ओ से, ओ या जीरो से। क्लियर? चलो यहाँ पर व्हाट टाइप मैट्रिक्स, वेरी गुड, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के 12 सब है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। तो ये एक्चुअली अगर नाम अच्छा इसका नाम होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसका नाम, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, और बाकी ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑर्डर भी अगर बोलेंगे तो 3 × 3, ये कुछ, हाँ वेरी गुड, स्क्वायर, इसमें कुछ भी अगर ऑर्डर नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो वेरी गुड, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो है 100% स्क्वायर, पर अपर में जीरो है, तो लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हुआ आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज सिखाएंगे, सोचो, आप लोगों को पता है एजर्सन रीजनिंग कैसे आता है, क्लियर, 10 से आप लोग कहते हैं एजर्सन में क्या होता है। सपोज सोचो कि एजर्सन में ये दिया, सो दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और रीजन दिया aij is equals to 0 where I is greater than j, is this is the reason, and this is the adjacent. Reason is correct or false, correct or incorrect, reason adjacent, ये adjacent में दिया है this is a lower triangular matrix, और reason में दिया aij is 0 because I is greater than 0 j, is it true or false, false है, because in upper I is
लेस, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो 1 2 है, तो ये वाला फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। ये केस में इसका रीजन से नहीं हुआ। अगर ये ऐसा होता तो ये सब चीज छोटा छोटा है जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम बोले तो डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर, नहीं पूछेगा आप लोग का, एसोसिएशन रीजनिंग और एमसीक्यू में आएगा। चलो ये मैट्रिक्स का नाम बोलिए। हट, और डिफाइंड स्केलर तो 100%। आइडेंटिटी आइडेंटिटी कृष्णा, स्केलर तो 100% है भाई, पर ये 1 1 1 हो जाने के बाद आइडेंटिटी बन जाएगा। स्केलर भी है 100% है, स्केलर भी है, स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, पर इसका एक्चुअल नेम अगर बोला जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो ये वाला, हाँ ये हुआ स्केलर। ये वाला अपर ट्रायंगल। चलो मतलब एटलीस्ट आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक। या लोअर ट्रायंगुलर के लिए ए आई जे इज 0 व्हेन आई इज लेस देन जे, क्योंकि इसमें ये जगह में आई का वैल्यू कम होता है, 1 2 1 3। इसके लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, दिस इज अ कंडीशन, बिकॉज हियर आई इज मोर 2 1 3 1 3 2, आई ज़्यादा होता है नीचे में डायगोनल का डाउन में। चलो अब आते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आंख बंद करके सॉल्व कर लेना, क्लियर। आप लोग खुद एनसीईआरटी नहीं कराएगा हम, एनसीईआरटी का हार्डली अगर क्वेश्चन हम चूज किया तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से कराएगा, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो आप लोग का काम है, क्योंकि आप लोग स्कूल में भी पढ़ेगा वही, हम भी पढ़ाएगा वही, तो फायदा ही नहीं है। तो एनसीईआरटी का टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएगा। ये एक मैट्रिक्स दिया है आपको, फर्स्ट लिखना है ऑर्डर। चलो ऑर्डर बोलो, कितना है ऑर्डर? 3 टाइम्स इंटू 4, so order is 3 into 4, yes or no? How many rows are there? 3. How many columns are there? 4. Kangana, any doubt? Clear? चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना ठो एलिमेंट है? हम आपको क्या बोला था, ऑर्डर का वैल्यू 12, 3 into 4 जो होगा वही 12 एलिमेंट है, क्यों काउंट करना है? ऑर्डर जितना होगा उतना एलिमेंट होगा, 3 4 12। चलो राइट द एलिमेंट A12 A23 एंड A34, मतलब उसका एलिमेंट का नाम वगैरह बोलो। A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में ये 3 है। चलो A23 बोलो, हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5। व्हाट इज A34? A34 इज -6। चलो एनसीईआरटी में 1 2 3 यही दिया है, और ये जो आया है ये इस तरह का क्वेश्चन 2023 का बोर्ड का सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आया था। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ A13। चलो नंबर 4 करते, व्हाट इज द A13? चलो A13 इज -1 एंड व्हाट इज द A24? -6, माइनस लिख दिया। चलो व्हाट इज द आंसर? क्लियर। चलो नेक्स्ट सुनिएगा आप ध्यान लागे, अब देखना ही, हाँ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ये एक क्वेश्चन। तो सोचो कि अगर मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, तो हम बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट इज एक्चुअली द ऑर्डर वैल्यू, तो मैट्रिक्स क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, आप लोग सोचो 8 को क्या क्या नंबर से डिवाइड जाएगा, 1 से, सो 1 इंटू 8 हो सकता है 8 एलिमेंट, 2 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 2 हो सकता है, ऑपोजिट भी कर देना, या फिर 8 इंटू 3 2। इज देयर एनी डाउट? इससे दूसरा कुछ बना के दिखाओ, किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि अब स्लोली स्लोली क्वेश्चन कंसेप्चुअल जाने वाला है। क्लियर, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर कंसेप्ट ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, तो कितना ऑर्डर बन सकता है, कितना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, 1 इंटू 8 8 होगा, तो कैसे निकालना है 8 को क्या क्या नंबर से डिवाइड जाएगा, और स्विच भी करना है, तो 4 टाइप है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर बोला है, ये एनसीईआरटी में इसी तरह का क्वेश्चन है, बट अगर क्वेश्चन हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड, अगर क्वेश्चन बोलता है तो 4 पॉसिबल मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स बनेगा, ये क्वेश्चन तो नंबर 1 का है, पर हाउ मेनी अगर बोलता है तो 4 पॉसिबल मैट्रिक्स आर फॉर्म्ड। एम आई क्लियर? चलो
सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इफ इट हैज 7, व्हाट इफ इट हैज 7, तो अगर 7 एलिमेंट होगा तो इसका तो केसेस 1 इंटू 7 हल ही है और 7 इंटू 1 है। क्लियर? एज आप लोग को बोलते आ रहे, ऑब्जर्वेशन को ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 8 एंड द 7 नंबर? अगर कुछ भी एक डिफरेंस, जो भी इन मैथमेटिकल वे 8 और 7 में क्या डिफरेंस है आप बोलिए, कुछ भी। अच्छा, इवन एंड ऑड एक तो, और दूसरा प्राइम एंड कंपोजिट। क्लियर? चलो, प्राइम एंड कंपोजिट एक्सेप्ट 7, लेट्स वी टेक एनी अदर प्राइम नंबर 3, 3, सो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा? ये बनेगा, 2 ही बनेगा। एनसीईआरटी बुक में आपका ये नंबर 5 दिया हुआ है, हम 7 रख दिया, और एग्जाम में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है किस तरह से पूछा गया उसको ध्यान देना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ प्राइम p प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब p, मतलब p बोल के लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमा में, प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब उसके पास प्राइम नंबर का एलिमेंट है, हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिक्स आर फॉर्म्ड? 2 ही खाली होगा। तो स्टूडेंट को तो ऐसा था, तो अगर प्राइम नंबर होगा तो उसका तो पॉसिबल ऑर्डर एक ही होने वाला है, 1 तो p इंटू 1 और 1 इंटू p। तो याद करना, इसमें हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर बनेगा बोलने से 2 पॉसिबल मैट्रिक्स आर ओनली फॉर्म्ड। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपका क्या होगा, अभी क्वेश्चन रखा हुआ है लास्ट में, 2 पॉसिबल मैट्रिक्स ही बनेगा। इज देयर एनी डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट, कोई भी प्राइम नंबर, ये जस्ट एक्स्ट्रा करा रहे, 5 भी होगा तब भी आंसर 2 होगा, पर अगर, एम आई क्लियर अप टू ईयर? चलो नेक्स्ट। चलो, मैट्रिक्स बनाना है, एक हम करेंगे, एक आपको, आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन था आप लोग का बुक में, आपको 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है। 2 इंटू 3 आई होप यू ऑल नो, जिसका डेफिनेशन दिया है ये 2 इंटू 3 मतलब 2 रो 3 कलम। तो फॉर्मेट पहले बनाते हैं, चलो ए नाम मानते, 2 रो 3 कलम, तो A11 A12, पहले ये लिख लेना, A13 A21 A22 A23। इज देयर एनी डाउट? यही होता ना, इतना ही मैट्रिक्स। चलो अब देखो, क्लास 12 में हम लोग मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं, तो आई होप छोटा छोटा कैलकुलेशन हम लोग माइंड में करेंगे, एक एक करके। आप लोग का बुक में दिखेगा छोटा छोटा किया है, नहीं करेगा भाई, हम डायरेक्ट करेगा। A11 इतना नहीं डाल सकता, आई में 1 डालो, जे में 1 डालो, सो 1 1 डालने से 2 माइनस 3 कितना होगा? अगर उतना फिर भी नहीं हो रहा है तो चलो 2 माइनस 3 कर दो। चलो A12 1 यहाँ आई में डालो, 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ पर 2 में 3 जा, 3 इंटू 2 इज 6, ऐसे करके लिख देता है। चलो 1 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 6, यहाँ पर 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 9। एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? ये आई है, ये जे है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग पुट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सॉल्व करेगा भाई, ये आएगा -1, यहाँ आएगा आपका -4, ये आएगा आपका -7, ये आएगा 1, ये आएगा -2, ये आएगा आपका -5। सो ये आपका होम टास्क एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा है। ये क्या करना था, आई प्लस जे, दैट मीन्स अगर ये होता 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 1 + 3, ये कितना भी नहीं लगेगा ये तो, और यहाँ लिखो 2, 1 + 2 ऐड करो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 बनेगा ये ऐड करो 1 + 3 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। लो, ये अदर आप लोग का काम। क्लियर? चलो ये हुआ मैट्रिक्स, ये भी हम नहीं करा देगा, आप लोग खुद कर लेना। जस्ट आई विल जस्ट राइट डाउन A 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मीन्स 3 रो 4 कॉलम। सो A11 A22, सॉरी A12 A13 A14, 4 कॉलम है ना। चलो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A434। अब आप लोग बनाते कीजिएगा, 1 1 या 1 1 मॉड्यूलस पता ही है, कुछ भी भीतर जाएगा नेगेटिव होने से पॉजिटिव होगा। सो ये आपका काम है, हम इतना बना दिया, आप लोग को जस्ट पुट 1 1 या 1 या पुट करना, कैलकुलेशन छोटा छोटा होगा, मिस्टेक मत करना। ये सब क्वेश्चन मॉड्यूलस से तो कुछ भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। क्लियर? ये आपका होमवर्क, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलो दूसरा, ये सब हम करेंगे। क्लियर? अब ये आपका एनसीईआरटी बुक से नहीं है। क्लियर? ये हुआ मेरा नोट से। चलो सुनो, अब यहाँ बोला गया फंक्शन के तरह यूज किया है, जैसा फंक्शन हम लोग किया था उसका, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स।
So 3 into 3 matrix, listen carefully. So 3 into 3 matrix is there. A11, A12, A2, A13. This is a A21, A22, A23. This is a A31, A32 and A33. You see, the condition is different. The different means when I is greater than equals to j, अगर I j से बड़ा या फिर बराबर होगा तब आपको ऊपर वाला फंक्शन लगाना है. दैट मीन्स अगर आप लोग बोला जाए इसको, ये वाला चीज को ये वाला फंक्शन लगाना है, और जो ये वाला चीज है इसको ये वाला फंक्शन लगाना है, डिफरेंट फंक्शन लगाना है. चलो अब एक ही बार में ये वाला चीज दिख रहा है नीचे का, जिसमें आई बराबर या फिर ज्यादा है, समझा दिया है राइट. ये वाला फंक्शन, चलो एडिशन करके वन ऐड करना है. चलो एडिशन करो, इजी है. वन वन ऐड करो, टू टू में और वन ऐड कर दो, थ्री. पहले ये वाला कर लेते. टू टू फोर, फोर में वन ऐड कर दो, फाइव. टू वन थ्री, फोर. थ्री वन फोर, फाइव. थ्री टू फाइव, सिक्स. थ्री थ्री सिक्स, सेवन. एम आई क्लियर? Because definition say that 1 plus I plus j, that means I and j add and then add 1. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4, 4 का एक 5, 4 एक 5, 3 2 5 का एक ज़्यादा 6, 6 और 7. अब ऊपर का चीज़ ये हो गया. अब इसका टर्न ना, इसका टर्न. चलो यहाँ पर क्या बोला है, मॉड्यूलस में है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 बोला है. चलो 1 डालते, यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर 2 डाल दिया. 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3/2. एम आई क्लियर? चेक कर लेना, ये नीचे का फंक्शन 1 3, यहाँ 1 डाला, यहाँ 3. 2 इंटू 3 6 आ रहा है. 1 माइनस 6 माइनस 5 आ रहा है, मॉड्यूलस के कारण से 5 आ रहा है, 5/2. चलो ये 2, यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ 3. तो 2 माइनस 6 माइनस 4 मतलब 4 मॉड्यूलस का बाहर, 4/2 2. अगर आप लोग को नहीं हो रहा है काइंडली आप लोग स्टेप स्टेप कीजिएगा, आप लोग आ जाएगा. ये 1 3, 1 डाला, यहाँ 3 डाला. 1 माइनस 6 माइनस 5 मॉड्यूलस के कारण से +5. ये क्यों क्या? क्योंकि आगे का दोनों क्वेश्चन मॉड्यूलस भी हो गया, दोनों हो गया. सो इन दिस वे यू हैव टू ट्रीट. एम आई क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट. चलो अब क्वेश्चन ऐसे करके आता है आप लोग का बोर्ड में, ठीक है. देखो, a square matrix aij n into n is called a diagonal matrix when aij is 0. तो डायगोनल मैट्रिक्स में aij कब 0 होता है? कौन सा कंडीशन? वेरी गुड. i इज नॉट इक्वल्स टू j, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 होगा. क्लियर? और एम एम एन एन तो क्यों दिया है? क्योंकि स्क्वायर होने के लिए कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है. एम आई क्लियर? ये स्क्वायर है इसलिए ये सेम दिया है. और आई इज नॉट इक्वल, बिकॉज ऐसे करके क्वेश्चन आता है. समझ में आया? इसलिए आपको उससे ज़्यादा कंसेप्ट को ध्यान देना है. और ये आई जे होता है ना, इसको ध्यान, खाली एग्जाम्पल लिखने से नहीं होगा. इन टर्म्स ऑफ आई एन जे यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट आंसर बोलो. मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? कौन सा नहीं हो सकता? वेरी गुड, बिकॉज 4 into 4 containing 16 एलिमेंट, एंड हाउ इट इज पॉसिबल? क्लियर? चलो नॉट ध्यान देना है. क्लियर? क्योंकि ये भी 8 8 8 दे रहा है. ठीक है. चलो चलो सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन अब अनदर वे से. चलो आप लोग सबको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा से कराया है. क्लियर? पहले हम डिटेल जाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर कंसेप्ट एकदम ट्रिक्स दे देंगे. क्लियर? पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं. चलो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2. पहले आप बोले 2 into 2 का जगह कैसे होता है? सबको ध्यान देना है. अब आ रहा है PYQ वगैरह सब एक ही बार में. ये हुआ आपका जगह. क्लियर? सो द क्वेश्चन से दैट द एलिमेंट, द एंट्रीज, एंट्रीज जो है, एंट्री मतलब एलिमेंट जो डालना है यहाँ पर, you can only use either 1 2 or 3. So how many option do you have to fill this gap? How many option? ऐसा बोला था ना परमुटेशन में. कितना ऑप्शन है आपके पास वो डालने के लिए? ऑप्शन 3 ऑप्शन है. ये जगह डालने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. ये जगह भी डालने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. वो और 3 ऑप्शन है. ये डालने के लिए भी 3 ऑप्शन है. सो 3 into 3 into 3 into 3, दैट इज आंसर विल बी 3 into 3 into 3 into 3. तो आपका होगा 81 इज द आंसर. इज देयर एनी डाउट? आई एम यूजिंग विच कंसेप्ट? परम्यूटेशन. अब ट्रिक सुनिएगा. इज देयर एनी डाउट?
वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, क्योंकि ये वाला टाइम जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो याद करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डियर द नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज जो दिया जाएगा टू द पावर ऑफ ऑर्डर, टू द पावर ऑफ ऑर्डर होगा, ऑर्डर का वैल्यू होगा, कोई भी ऑर्डर का वैल्यू लिखने से ऑर्डर, चलो ऑर्डर बोलने से होगा। क्लियर, ये आपका क्विकेस्ट ट्रिक्स हुआ। आपके पास कितना एंट्री दिया है, 1 2 3, 3 लिखो। ऑर्डर क्या है आपका 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2, सो 3 टू द पावर ऑफ 4 इज 81। सो दिस इज ए ट्रिक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये अक्सर बार बार देखा गया है, हम तो एक ही 2016 का खाली लिया, 2022 में भी था, 2023 में भी था। सर्कल 4 से 5 सेट आता है, आप लोगों को पता होगा। ये जोन में नहीं होगा तो दिल्ली जोन में, दिल्ली जोन में नहीं, दूसरा जोन में ऐसा आया गया है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये आपका 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है और आपका ए आई जे दिया गया है। ये रखने का मेन मोटिव है आपको ए, ये एमसीक्यू में आया था एक साल। क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन अगर आने से, अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आप लोग सब फाइंड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखा होगा ये क्वेश्चन में, क्लियर, 4 7 5 जो है वो सब में सेम है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? यस और नो? ये वाला फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर, जस्ट आई विल फाइंड फर्स्ट A11 फाइंड करेंगे। A11 ये वाला पोजीशन का। सो व्हाट इज A11? तो 1 डालो यहाँ पर, यहाँ 1 डालो, तो 3 - 2 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन में -1 है, ये ऑप्शन रॉन्ग। कैंसलेशन मेथड हटा रहे आस्ते आस्ते करके। तो इसमें भी 1 था, इसमें भी। अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। चलो A12 फाइंड करते। सो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो -4, ये आ रहा है -1, तो ये -1 यहाँ पर है आपका, यहाँ पर -1, ये तो कट गया था, तो ये भी नहीं होगा। सो अब बचा हम लोग के पास दो ही ऑप्शन, आइदर बी और डी। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस एलिमेंट, नॉट दिस वन, बिकॉज ये और इसमें दोनों में क्या है, ये तो सेम है, इसलिए बोले जो डिफरेंट एलिमेंट है उसी को। अगर सोचो कि एक ऐसा पोजीशन है जिसमें चारों का चारों एलिमेंट डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये 2 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 6 होता, आई विल ओनली फाइंड दैट एलिमेंट, एक ही से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट अदर। सो दिस इज अ पोजीशन A22। सो व्हेन आई पुट 2, 3 इंटू 2 इज 6, तो आपका 2 आ रहा है। सो यहाँ -2 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो ये आपका हुआ आंसर। यहाँ -2 के कारण से ये रॉन्ग। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई, ऐसा टाइम वेस्ट मत करना कि सारा एलिमेंट फाइंड करते जाना, नहीं। आपको फाइंड कैसे करना है, देखना है पहले, एकदम नजर देखना कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट सबका डिफरेंट है, तो वही खाली चेक करना, हो गया, तो वो अगर जो आए वही आंसर है। तो ऐसे करके चेक करना, इसलिए ये क्वेश्चन को रखा गया है। चलो, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ईयर नहीं दिया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हम ईयर डालना भूल गया, ये बोर्ड का क्वेश्चन। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला जाया था, ऑर्डर सेम है, क्लियर, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अब सुनो, सब लोग ध्यान लगा सुनो, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x भी है, y भी है, 7 भी है। अगर हम इसको इसको कंपेयर करेंगे तब भी x y है, अगर हम इसको इसको कंपेयर करेंगे तब भी x y है, पर अगर हम इसको इसको कंपेयर कर दे तो मेरा x का वैल्यू तो आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कोई भी दो 4x इक्वल्स टू x प्लस 6, सो दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 2, तो x आ गया। अब इजी हो गया। सोच रहा है सर ये और ये करके, ये और ये करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी तो सॉल्व करते थे यार, डेफिनेटली कर सकता है, पर जहाँ से x जल्दी आ रहा है वहाँ से पहले x फाइंड कर लो। अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, वो भी आएगा अभी, उसके बाद कोई भी कंपेयर कर लो ना। अब ये वाला इक्वेशन ही कंपेयर कर लो। चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो आपके पास y मतलब क्या है, 7 - 2x है, तो यहाँ से 2 डाल देना, तो 7 - 2 इंटू 2 इज 4, सो y इज 3। सो जब भी आंसर लिखोगे तो बॉक्स में लिख देना, ये हुआ आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू। और आपका x एंड y तो नहीं चाहिए शायद, आपको चाहिए x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज 5। ये आपका परफेक्ट आंसर। एनी डाउट? क्लियर? चलो, ये देखो, अब फाइंड x एंड y यहाँ पर है, ये हुआ प्लस है, तो प्लस आपको पता है ना कैसे होगा। देखो, अब क्वेश्चन क्विकली कैसे करना है, देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आपको तो चाहिए x एंड y ना, तो x का जगह यहाँ पर है, तो आई जस्ट कंपेयर दिस एलिमेंट, ओके।
So when I multiply this with 2, as I have already told you, scalar if I multiply with any matrix, it will multiply with all the element. तो आप multiply कीजिए. So 2x plus 3 is equals to 7. एक इक्वेशन ये हुआ. अब आपका चाहिए y. y यहाँ तो यहाँ पर है. चलो यहाँ का एलिमेंट को कंपेयर करते हैं. So एक इक्वेशन क्या आएगा आपका? 2y minus 6, 2y minus 6 plus 2 is equals to 14. This type of question mostly comes in MCQ, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं. सो 2x इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा माइनस होगा तो 4 लिख दिया डायरेक्टली, तो x का वैल्यू आ गया 2. यहाँ से 2y, ये -4 हो रहा है, उधर जाने से +4 होगा 18, इतना तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा. ये -4 उधर जाने से +4 18, तो y का वैल्यू आपका आ गया 9. सो ये हो गया. अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, MCQ में आता है मोस्टली. अगर MCQ में नहीं आया तो लिखा होगा तो आपको जस्ट लिख देना ऐसा. कंपेयरिंग, कौन सा एलिमेंट है ये जगह? A11. और ये कौन सा एलिमेंट है? A22. एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड. बस अगर 2 मार्क्स में हुआ, और मुझे नहीं लगता कि CBSE ऐसा 2 मार्क्स में देगा. ये सब क्वेश्चन MCQ में आता है. चलो दूसरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन. थोड़ा हम ट्विस्ट किया है. NCERT का क्वेश्चन है पर हम ऐसे नहीं करके ये वाला का वैल्यू. NCERT में अगर यही क्वेश्चन देखा जाए तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z है. यही नंबर हम दूसरा तरीका से लिया है. तो आप सोचिए कि x प्लस वाई प्लस जेड, सुनो 9 है, और x प्लस जेड अगर इस नॉर्मल से हो जाएगा, देखो y प्लस जेड यहीं से निकल जाएगा. सोचो ना, अगर y प्लस जेड अगर 7 है तो 7 प्लस क्या करने से 9 आएगा, तो x का वैल्यू तो 2 आ गया. ये तो इजी था, है कि नहीं? y प्लस जेड 7 है तो अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा है, तो x प्लस 7 इज 9, x का वैल्यू 2. 7 उधर ले गया, x का वैल्यू, तो x 2 होने से 2 प्लस क्या जोड़ने से 5 आएगा, तो z का वैल्यू 3. अगर z 3 होने से y प्लस क्या जोड़ने से 7 आएगा, z 3, तो y का वैल्यू 4 आया ना. मतलब ये इजी था. आप लोग जिस तरह से करोगे, y प्लस जेड यहाँ डाला 7, सो x का वैल्यू 2. एम आई क्लियर दिस वन? अगर x 2 है तो z आ जाएगा 3. अगर z 3 है तो y प्लस 3 7 हो रहा है, तो y का वैल्यू 4 होगा. आपको क्वेश्चन ये हुआ आपका NCERT में क्वेश्चन XYZ. हम थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे करके लिख दिया क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके पूछता है. चलो x कितना था आपका 2, y था आपका 4 और z था आपका 3. सो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 1 हो रहा है, तो ये हुआ आपका आंसर. NCERT का क्वेश्चन ऐसे करके आता है. हाँ, यहाँ पर दिया a, यहाँ पर दिया k का वैल्यू इतना. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. चलो ka, so when I multiply ka, so you have to multiply with all the element. so हम लिखेगा 0, यहाँ लिखेगा 3k, यहाँ लिखेगा 2k, यहाँ लिखेगा -5k. इज देयर एनी डाउट? सो यहाँ लिखेगा ये 0 है, ये 4a, ये -8, यहाँ पर 5b. आपको क्या चाहिए? आपको k चाहिए ना, तो k चाहिए तो ये और ये कंपेयर करेंगे. क्यों ये और ये कंपेयर? फिर 4a का टर्म में आएगा, यहाँ से डायरेक्टली k का वैल्यू आ रहा है. सो 2k इज इक्वल्स टू -8, सो k इज इक्वल्स टू -4. k का वैल्यू कितना हुआ? -4. कुछ डाउट? सोचो कि ये क्वेश्चन में k नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा a. ये तो क्वेश्चन, चलो ये इजी था. एक्स्ट्रा अगर आपको पूछता a का वैल्यू, तो सिंपल है, यहाँ से क्या आ जा रहा है आपका, तो 3k इज इक्वल्स टू 4a. तो आपके पास तो k का वैल्यू है ही, तो -4 इज इक्वल्स टू 4a. 4 4 कैंसिल, सो a इज इक्वल्स टू -3. उसी तरह से अगर आपको b पूछता तो 5b इक्वल्स टू ये -5k इज इक्वल्स टू 5b. 5 5 कैंसिल, सो k का वैल्यू -4 था, तो b का वैल्यू भी आ गया. तो मेरा हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन होता ये पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. कुछ डाउट? प्रियंती एनी डाउट? चलो दूसरा, कुछ भी डाउट है तो पूछना है. चलो DIAG जब ऐसा लिखा तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट है. तो ये इजी वे से हम सिखा रहे हैं आपको. देखो अगर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट को ऐड करेंगे, सोचो ऐसे करके कुछ भी ऐड करेंगे, तो आपका तो 100% क्या ही आएगा, डायगोनली आएगा. 100% है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये और ये तो 0 होगा, तो ऐड करने से 0, खाली डायगोनल एलिमेंट में इफेक्ट होगा. So that means whenever you are adding or subtracting a two diagonal matrix, you are getting another diagonal matrix.
तो आपको क्विक अप्रोच बता दे रहे, ठीक है ना। चलो सुनो, ये क्वेश्चन ये रीजन में तो नहीं आया, ये क्वेश्चन दिल्ली का रीजन में 2018 ना 19 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, इस तरह का क्वेश्चन। चलो यहाँ पर दिया है ए ये है बी ये है, आपको पूछा है 3a माइनस 2b, तो सिंपल है 3a माइनस 2b इज अ, ये भी डायगोनली आएगा। चलो आप बोले मुझे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ए को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 5 जा 15, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 7 दैट इज 14, ये एक एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट 3 से इसको मल्टीप्लाई करो -6, और 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 -16, क्लियर। और दूसरा 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना 2 7 जा 14, so this is the answer. So answer is diagonal matrix of what, this is 1, this is -22, and this is your 7, so 1 -22, और कहीं पर मिस्टेक किया हम, 2 इंटू 5 10, माई मिस्टेक सॉरी, ये 5 था ये 10 है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 10 होगा, तो ये आपका होगा 11। देखिए तो कहाँ पर है 1 -22 11, आई थिंक दिस, ये है आपका। एनी डाउट, so, ऐसे करके क्वेश्चन क्लियर। चलो नेक्स्ट आंसर बोलिए, यही क्वेश्चन बोल रहे, यही क्वेश्चन पास्ट ईयर का है, आंसर बोलिए। सी, yes or no, because the total number of element in a matrix representing a prime number, सपोज कितना एलिमेंट है आपके पास, प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सो देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैन हैव इज, ऑर्डर कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, दो ठो पॉसिबल ऑर्डर होगा, क्लियर। हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर है, 2 पॉसिबल, वन इज व्हाट 1 इंटू पी, दूसरा इज p इंटू 1, 2 ही होगा, यही क्वेश्चन बोल रहे थे। चलो अब ज़्यादा नहीं, हाँ कंसेप्ट जो हो गया, लास्ट का 2 क्वेश्चन खाली इंटरेस्टिंग टाइप का है। आपको पूछा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। चलो ये तो कंपेयर ही करना पड़ेगा, ये और ये कंपेयर करने से आपका क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, और एक देखो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका यहाँ पर 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर आ रहा है 3x प्लस डब्ल्यू। ये सब क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। चलो यहाँ से ये 1 देते, चलो इसको 2 देते, चलो सॉल्विंग 1 इन 2, यहाँ से कैन वी राइट y इज इक्वल्स टू 2x, yes or no, y is equals to we can write 2x putting over here, therefore from 1 यहाँ y का वैल्यू 2x डालो, तो आपका आया -1, यहाँ से आया -x इज इक्वल्स टू -1, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो x का वैल्यू 1, सो देयरफॉर व्हाट इज y इज अ 2x, सो दैट इज 2, सो आपका y का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 1, अब तो दोनों सब है यहाँ पर, क्लियर। चलो इसको देते 3 नंबर, इसको देते 4 नंबर, चलो क्लियर। देयरफॉर फ्रॉम 3 x कितना आया है 2, सो हम डायरेक्ट लिखा 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, सो दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 3, सो ये हुआ आपका z का वैल्यू। फ्रॉम 4 इक्वेशन में, चलो यहाँ x का वैल्यू 1 था, तो ये 3 प्लस w इज इक्वल्स टू 13, सो w इज 10। एनी डाउट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर पाएगा, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है, आप लोग खुद कर लेना, हम जस्ट लिख दे रहा है। सो दिस आल्सो सेम थिंग, लुक a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इजंट इट। कैन वी सॉल्व दिस वन, यू कैन इजीली सॉल्व दिस वन, आप लोग का एलिमिनेशन भी लग जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके लगा दो। चलो सॉरी साइन चेंज, बी बी कैंसिल, यहाँ से आ रहा है -a, ये आ रहा है आपका -1, यहाँ से a का 1, चलो ये आपका होम टास्क। हाँ फिर से यहाँ से आपका आ रहा है 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। चलो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू यहाँ 1 डालने से b भी आ जाएगा आपका, क्लियर। b2 आ रहा है, a यहाँ डालो, c आ जाएगा, c डालने का d आ जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन था, ये आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आप लोग खुद करना है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, a इज इक्वल्स टू b कब होगा, जब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। सो एक आएगा आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3,
और दूसरा इक्वेशन आपका आ रहा है 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, यस और नो। और एक तो इक्वेशन आ रहा है आपका, देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6। कुछ डाउट है तो बोलो, थोड़ा देखना। अब ज़्यादा नहीं है, 18 है ना, 19 20 छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा, वन वन स्लाइड है, लास्ट स्लाइड इज दिस वन, एमसीक्यू क्वेश्चन है पास्ट ईयर का। क्लियर, मेन क्वेश्चन इसी में है, देखो। We are going to find out the x and y, clear, because you have to find out the forward value. But main reason is the over here that can we write x equals to 2 over here, ये तो समझ में आ जाएगा इतना। x अगर इधर क्या माइनस एक्स, 1 उधर क्या -1, तो x का वैल्यू 2, क्लियर, ये वाला चीज को। कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज अ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, चेक इट। इसको उधर लेके हम, so you know how to solve middle term factorization. So when you do middle term factorization, dear, so y square minus 2y minus y plus 2 equals to 0. So y if we take, so y minus 1, y minus 2 minus 1, y minus 2. So here you are getting y minus 2 or y minus 1 का वैल्यू 0. From here you are getting y is equals to 2 और y का वैल्यू 1. इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यहाँ है, सुनो, यहाँ ध्यान लगा सुना, ये इतना इजी। सब लोग सोचेगा सर x आ गया, y का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, है कि नहीं, ऐसा होगा ना। यहाँ पर भी आपका इक्वेशन जिससे y का वैल्यू डिफरेंट दे सकेगा, क्लियर। सो व्हेन यू फैक्टराइज दिस वन डियर, सो यू आर गेटिंग y minus 3 and y minus 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन है, सुनना है अब, यहीं से मेन चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू या 2 मार्क्स में, क्लियर। तो छोटा मिस्टेक होने से आपका सब गया, देखो y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। सो ऐसा सोचने से तो भाई y तो यहाँ, x तो कम से कम यूनिक है, x इज यूनिक, ओके, बट द y, because whenever you are making this two matrix as a equal, you have to get a y such value where each and every elements are same, then only it is equal. अगर आप सोचिए कि y का वैल्यू 1 मान रहा है, इमेजिन करो y का वैल्यू अगर 1 मान रहा है, तो 1 मानने से इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 1 डालोगे आप, 1 -5 या -4 आ रहा है या -6 आ रहा है, तो दैट मीन्स, एम आई क्लियर, बिकॉज what is the common value which satisfy both the equation. तो कौन सा कॉमन वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बोलिए कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दियर दिस वैल्यूज। तो किसी को अगर डाउट है सर व्हाई आई एम नेग्लेक्टिंग, व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग y इक्वल्स टू 1 and y इक्वल्स टू 3, द रीजन इज दैट if we assume dear y equals to 1, this equation is satisfied, but the second equation will not satisfied. And since you are have to take in such a way that the values of x and y for which two matrices are equal, and two matrices are equal when the order are same, which is already given, and the second is corresponding element must be same. But when you take y equals to 1, this is same but the down part is not same. Similarly, if we take y equals to 2, this will be same but this will be not same. So that is why from here this one, clear, एक काम करते हैं, from 1 and 2 we can say that y is equals to 2. So this is your perfect answer. कोई भी अगर हड़बड़ी से y का वैल्यू 1 रॉन्ग, y का वैल्यू 3 रॉन्ग, दिस इज अ यूनिक वैल्यू, क्लियर। चलो आज का क्लास इसमें है, जो बोलेगा मान जाएंगे। आप लोग अच्छा तरह से समझा, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, स्केलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन 2025 2024 में क्वेश्चन आया था ऐसे। आई होप स्केलर मैट्रिक्स अच्छा से समझा है, अब आपको पता चलेगा क्यों इतना टाइम लेके समझाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो बोलो क्या होगा, फर्स्ट जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, x is 0 and y is 7, yes or no, because the definition of the scalar matrix say that all diagonal element must be same and the non diagonal elements are 0, clear, and you have to find out the, ये अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो you have to find out the y to the power of x. So y is a 7 and x is a 0. What is the values of 7 to the power of 0? 1. Anything to the power of 0 is 1.
ये हुआ आपका क्वेश्चन, ऐसे करके आएगा। क्लियर? चलो इसका सेम लॉजिक। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए फर्स्ट? चलो डी सी, चलो सी जीरो, बी भी जीरो है कि नहीं? ओके डी 5। चलो समझ में आ रहा है कैसे करके आ रहा है? चलो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के रखो। पर इंटरनल क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कंसेप्ट आएगा छोटा सा, ये तो और भी इजी इजी टाइप का आईजे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो हम लोग आगे में किया था। चलो ए 5 था, यहाँ 5 लिख दिया, डायरेक्ट कर दे रहा। बी 0 है, नहीं लिखा, काट देते। सी भी 0, ये भी काट देते। और डी आपका 5 है, तो 4 × 5 इज 20। सो व्हाट इज द आंसर देन? 20 + 5, 25। So this is a CBSE 2024 question. Clear? So that means this is your first class. I hope you all understand this concept because this is a very easy topic. Remember that. पर इंटरनल छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, उससे आप लोग का कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। आप लोग को मेन चीज प्लस माइनस है बोल के नेग्लेक्ट करता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऐसा नहीं करना है। क्लियर? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड द ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 10 मार्क्स मतलब सोचो आप लोग ये जो फर्स्ट मंथ पढ़ोगे, फर्स्ट मंथ भी नहीं चाहिए, अभी तो ऑनलाइन है बोल के। क्लियर? फर्स्ट जो भी होगा आपका 8 क्लास, सोचो 6 to 8 क्लास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 10 मार्क्स ओवर। सो आप लोग को ध्यान लगा के एक एक चीज़ थॉरो करना है। आप लोग का क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी बुक जिस जिसके पास नहीं, उसमें है आपका वेबसाइट में, जहीं पर भी है आप लोग ले लीजिएगा, या 3.1 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। सो ऑल क्वेश्चन आपको आग बंद करके हो जाएगा। क्लियर? सो लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग हम आपको वर्कशीट देंगे। क्लियर? आप वाले 3.1 कीजिए और 2 एक्सरसाइज कर लेते, 1 चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको वर्कशीट देंगे। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।